Good morning and Jai Hind dear students. So welcome to economics class. Dear students, from last period we are revising the chapter development. So let's start the revision of first chapter of economics, development. So development. So dear students, in last period we discussed about the features of development. Features of development, and we have discussed that different persons can have different developmental goal. It was the first feature. What was it? Different persons can have different developmental goal. Then we discussed the second feature of the development, and that was development for one may not be development for the other. Even it may be more destructive for the other. And the third was, for development people look at mix of goals. So these three features we have discussed in last period. And today we will discuss the other topics of the chapter. So just to make it sure that when there is question about what are the features of development, you have to write that different persons can have different developmental goals. जो अलग अलग तरह के लोग हैं या अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल, उनके विशेस, उनके डिजायर्स अलग अलग हो सकते हैं. Then the second was, development for one may not be development for the other. Even it may be more destructive for the other. किसी एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है या डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट की मीनिंग है, वो हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो. इवन वो उसके लिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वो बेनिफिशियल है उन रीजन के लिए जहां पर कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, या उन इंडस्ट्रिस्ट के लिए जिनको डैम के कंस्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिले. लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव किसके लिए है? दिस इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द पीपल, फॉर द ट्राइबल पीपल हु विल बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. उसके बाद हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड फीचर ऑफ डेवलपमेंट, दैट वाज फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. डेवलपमेंट के लिए लोग कई तरह के गोल्स को देखते हैं, लाइक इनकम एंड अदर गोल्स. मैंने बताया था कि इनकम इज अ जनरल डेवलपमेंटल गोल. अगर इनकम की बात करें तो सबका डेवलपमेंटल गोल में कहीं न कहीं इनकम इंक्लूड होता है, लेकिन साथ साथ जो अदर गोल्स हैं दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, लाइक मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स. Non-material things like security, like chances of promotion, working atmosphere, security, and many more. So dear students, now we are going to start the other topics of the chapter. So please be with me and please keep your book with you and just open the chapter. Okay. So dear student, I will start today's topic from national development. National development. Dear student, as we have seen above, individuals seek different goals.
then their notion of national development is also likely to be different. आपने देखा कि सबके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल अलग अलग थे, तो नेशनल डेवलपमेंट का जो नोशन होगा वो भी सबका अलग अलग होगा. You would find that different students in the class have given different answers to the above question. अगर मैं इवन आपके क्लास में पूछूं कि what is the meaning of national development for you, तो आप में से कोई कहेगा अगर इनकम बढ़ जाए लोगों की, कोई कहेगा अगर लिटरेसी रेट 100% हो जाए, है ना, कोई कहेगा करप्शन खत्म हो जाए, कोई कहेगा हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हो जाए, कोई कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए. तो फॉर नेशनल डेवलपमेंट नोशंस विल बी डिफरेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज conflicting notions of a country's development. ये समझना जरूरी है कि लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और कई बार ये कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए. सो द क्वेश्चन इज, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या जितने भी लोगों के आइडियाज हैं, डेवलपमेंटल गोल हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? तो नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो. आज से कुछ समय पहले तक कश्मीर के लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या था? सिक्योरिटी ऑफ ऑल. तो समय समय पर लोगों के डेवलपमेंटल गोल बदलते रहते हैं एंड द डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट पर्संस कैन बी डिफरेंट. तो अगर ओवरऑल इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवरऑल दैट व्हाट शुड बी कॉमन नेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल. तो when per capita income is increasing or national income is increasing, when 100% literacy rate is there, when there is no corruption, when there is proper health care facilities available in the country, then it will be termed as national development. Understand? Okay. Now the question is how to compare different countries or states. अगर अलग अलग देशों को कंपेयर करना है तो हाउ वी कैन कंपेयर? सो हाउ टू कंपेयर? How to compare different countries. So you might ask if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? है ना? अगर ये हो, आप जरूर पूछेंगे कि अगर डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है तो कैसे कुछ कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, कुछ कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, या कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं. तो लेट अस कंसीडर. So when we compare different things, जब हम किसी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं तो दे कुड बी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. उसमें सिमिलैरिटीज भी हो सकती है और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम?
नाउ द क्वेश्चन है कि हम किस बेस पे उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास का एग्जाम्पल लेता हूं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? बिकॉज दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट्स। The healthiest student may not be the most studious one. जो आपके क्लास का सबसे हेल्दी बच्चा होगा वो जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा स्टूडियस हो। The most intelligent student may not be the friendliest one. जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा आपके क्लास का है या स्टूडेंट आपके क्लास का है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा फ्रेंडलीस्ट ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो आखिर हम इन स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? So the criterion we may use depends on the purpose of comparison. तो क्वेश्चन ये है कि हमको किस लिए कंपेयर करना है, तब उसके बाद हम उसका क्राइटेरिया चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम। अगर हमको स्कूल की स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो हमको अलग क्राइटेरिया यूज करना होगा, अलग क्राइटेरिया चूज करना होगा। क्या होगा वो क्राइटेरिया? जो बच्चा हेल्दी हो, जो बच्चा वो स्पोर्ट्स बेहतर खेलता हो। अगर डिबेट टीम चूज करना है तो उन बच्चों को चूज करूंगा जिनका कन्वर्सेशन बेहतर हो, जिनको टॉपिक्स के नॉलेज बेहतर हो। या अगर एक म्यूजिक टीम चूज करनी है तो उन बच्चों को चूज करूंगा कि वो कितना अच्छा, वो बेहतर सिंगिंग या डांसिंग या वोकल किसमें कितना बेहतर करते हैं। तो ये कंपैरिजन डिपेंड इस बात पे करता है कि किस लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? सो स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास। सपोज करो कि हमको क्लास में ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना हो, तो क्या करना चाहिए? मैंने स्पोर्ट्स टीम के लिए बता दिया, डिबेट टीम के लिए बता दिया, है ना, और इवन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट म्यूजिक टीम। बट if we have to choose the criterion for all around progress of the children, so usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. तो हम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करते हैं, एक से ज्यादा क्राइटेरियन को चूज करते हैं आपस में कंपेयर करने के लिए। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, understand, so for comparing countries their income is considered to be one of the most important attributes. अगर हम कंट्रीज को आपस में कंपेयर करें तो जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होगा दैट विल बी इनकम। इनकम, इट विल बी, वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। Why? Because countries with higher income आर मोर डेवलप्ड। जिन कंट्रीज के इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है, और जिन कंट्रीज के इनकम कम है दे आर लेस डेवलप्ड। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इनकम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन नीड की चीजें परचेस कर पाएंगे। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. अगर उनका इनकम ज्यादा है तो वो भी जो भी पसंद करते हैं वो अवेल कर सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ इंपॉर्टेंट गोल। तो जब हम आपस में इफ वी विल कंपेयर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? अगर हम इनकम के बेस पे कंट्रीज को कंपेयर करें तो एक्चुअली व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? सो द इनकम ऑफ द कंट्री इज, अगर हम किसी कंट्री के इनकम की बात करें तो इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सबकी इनकम को अगर टोटल कर दें तो ये कंट्री की टोटल इनकम हो जाएगी। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। However,
फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। अगर हमको दुनिया के अलग अलग देशों के इनकम के बेस पर अगर उनको कंपेयर करना है तो टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उनकी पॉपुलेशंस अलग अलग हैं। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हम टोटल इनकम पे आपस में कंपेयर करें तो ये हमको पता नहीं चलेगा कि एक पर्सन एवरेज कितना अर्न करता है उस कंट्री में। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन ए डिफरेंट कंट्री? तो टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरियन टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे अगर हम टोटल इनकम नहीं लेते कंट्रीज को आपस में कंपेयर करने को? व्हाट वी हैव टू टेक? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. तो हम अलग अलग कंट्रीज को उनके एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। If we have to compare the countries of the world, we will not take total income. We will take average income. Average income. Average income. And how we get average income of any country? हम किसी कंट्री का एवरेज इनकम कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू total income of the country total income of the country divided by total population. ठीक है? So if we have to compare the different countries of the world, we will not take total income, we will take average income, and it is very useful criteria to compare the different countries of the world. क्लियर हो गया? अगर एवरेज इनकम, इफ यू हैव टू फाइंड एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? अगर आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करते हो तो यू विल गेट एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री, एंड this average income is also known as per capita income. Clear? Average income is also known as per capita income, and it is very important term. हम लोग कई बार इसको यूज करेंगे आगे चल के। ठीक है? एवरेज इनकम से ज्यादा हम पर कैपिटा इनकम यूज करेंगे। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. What will come? That will be per capita income or average income, and it is the very, or you can say most important criteria used for comparing the different countries of the world. Clear हो गया ये? That is per capita income. Now, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम एवरेज इनकम पे कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो ये काम करता कौन है? Who compares the different countries of the world on the basis of per capita income?
तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड बैंक। इसको याद रख लो। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, and in world development report which is published by world bank जो है हर साल एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, और इसके हिसाब से वो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफाई करता है। सो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 which is brought out by World Bank, which is published by World Bank, used this criteria to classify different countries of the world. क्या कहा वर्ल्ड बैंक में? कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries. फिर से सुनो, वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम या उससे ज्यादा है, दे विल बी टर्म्ड एज रिच कंट्रीज। क्या है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम को आई एम राइटिंग पीसीआई 4,53,000 पर एनम। अगर किसी कंट्री की पीसीआई 4,53,000 एंड अबव, जो कि पर एनम है, अगर होती है तो दैट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज एनुअली, और पर एनम then those countries will be termed as rich countries. Rich countries. Clear? And those with per capita income of rupees 37,000 or less are called low income countries. 37,000 or less. Low income countries. Clear? And I am talking about 2004. ठीक है, वो आपके बुक में अलग अलग हो सकते हैं। Clear? And I am talking about 2004. India's per capita income was 28,000 in 2004. India's per capita income was 28,000. So, India comes under middle low income countries. Clear? Or you can say
middle low income countries, and it was India. So middle low income countries, and the rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. So dear students, we have mainly discussed today that was development, its features, then total income, per capita income or average income, and then how World Bank classifies the different countries of the world. What stats I have given here, that is according to 2004. वो 2016, 17 वो ये स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, ओके, but that is the criteria how World Bank uses to compare the different countries of the world. So dear students, I hope what I explained today is very much clear to you. Just read it properly, and we will meet in next class with different topics of the chapter. Till then, thank you and have a nice day.